Hello, finance students. I'm trying to solve a question based on foreign currency. A small question which I'll share you in short while with you on your screen. I'll try to solve this question online, and I want you that you go through this question and practice the same. Let's see the question first. I'm sharing the screen. You can see this journal what I have made. You can see this question, isn't it? So let's read this question carefully. Is it? Now, if we read the question, you can see the question on your screen. Swapnil Limited, a dealer in cosmetic exports goods on 1st January 2006, worth rupees 50,000 to WK Limited in New York. The payment was received on 31st March 2006. On the date of invoice, the exchange rate was $1 is equal to 47. When the payment was received, it was 48. A very simple question, purposely taken a simple question in order to make it understand. Swapnil Limited is a dealer and in cosmetics, and they are exporting that cosmetics. Exporting matlab it is export sales. The transaction takes place on 1st January 2006. You can see over here. The transaction is happening on the 1st January 2006. Worth rupees $50,000. To whom they are exporting? WK Limited. WK Limited is nothing but these are daters. They are their customers. They are selling these goods on credit. The payment was received on 31st March 2006. एकदम perfect month end पे payment मिल रहा है. On the date of invoice, the exchange rate was $1 is equal to 47, and when the payment was received, it was $1 is equal to 48 rupees. So journalize the above transaction in the books of Swapnil Limited, right? Now we need to journalize this transaction in the books of Swapnil Limited. Let's see how we can do it. I'll show you the journal over here. You can see the journal over here. ये journal दिख रहा है आप लोग को, जिसको मैंने पहले ही बना के रखा है, isn't it? So let's try to solve it. ये ईयर डाल देता हूँ 2006 है और ट्रांजैक्शन होने की तारीख देख लेते हैं. चलो, you see the transaction. The transaction took place on 1st January 2006 worth rupees 50,000 and they were selling goods to WK Limited in New York, isn't it? तो आपके ट्रांजैक्शन होने की तारीख जो है वो क्लियर है. क्या तारीख है ये? Jan 1st. आपने गुड्स बेचा, किसको बेचा? WK Limited, बराबर. WK Limited न्यूयॉर्क, और इसको हम लिखेंगे टू एक्सपोर्ट सेल्स. टू एक्सपोर्ट सेल्स. कितने का ट्रांजैक्शन हुआ? $50,000 का. $50,000 का ट्रांजैक्शन हुआ तो आपका जो ट्रांजैक्शन वैल्यू था वो कितना हो जा रहा है? 50,000 था और उस दिन डॉलर का रेट 47 था. Now if you see this, so I'll have to show the calculation over here. 50,000 into 47, is it? आपके स्क्रीन पे देखो, अभी कैलसी दिखेगा. ये अमाउंट वर्कआउट कर लेते हैं. 50,000 into 47, तो ये अमाउंट हो जा रहा है 23,50,000. तो लेट मी प्लेस दिस अमाउंट 23,50,000. 23,50,000. नरेशन लिखना होगा तो क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स एक्सपोर्टेड ऑन क्रेडिट. बीइंग गुड्स एक्सपोर्टेड ऑन क्रेडिट है. ये आपका नरेशन हो गया. अब आते हैं दूसरी तारीख को. Jan 1st हो गया.
अब इसके बाद बीच में कुछ पैसा नहीं आ रहा, सीधा पैसा आ रहा है कभी मार्च 31 को। अब मार्च 31 को आपको पेमेंट आ रहा है, पेमेंट आ रहा है मतलब पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा बाकी था? 50,000 बाकी था, और ये 50,000 आ रहा है 48 के हिसाब से, बराबर। जिस दिन पेमेंट क्लियर हो रहा है उस दिन रेट कितना है देख लो जरा, 48 रुपीज का रेट दिया ना यहाँ पे। तो आपको जो पेमेंट आ रहा है वो 48 रुपीज आ रहा है, आपने माल बेचा था 47 के हिसाब से। अब आप तय करो कि आपको फायदा हो रहा है या नुकसान। अब इसकी एंट्री पहले लिख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, जो आपको पैसा आ रहा है 48 के हिसाब से। और जब आपने सामान बेचा था WK न्यूयॉर्क को, जब आपने सामान बेचा था, तो उस दिन डॉलर का रेट क्या था? 50,000 इंटू 47। अगर 50,000 47 करता हो तो ये अमाउंट हो जाएगा 23,50,000। इज इट फाइन? अगर इस अमाउंट को चेक किया जाए तो कितना होता है? अगर इसको मैं चेक करूं तो कैलसी पे देखते हैं, तो चेक करते हैं कितना होता है। कितना अमाउंट है? 50,000 रुपीज इंटू 48। तो ये जो अमाउंट वर्कआउट हो रहा है 24 लाख से, बराबर। अभी 24 लाख रुपीज था आपका। तो अगर आप देखो यहाँ पर, तो आपके पास जो पैसा आया तकरीबन कितना आया? 24 लैक्स आया, बराबर है ना। तो लेट अस मेक दिस 24 लैक्स। अब देखो तो मोटा मोटी 50,000 रुपए का फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? 50,000 रुपए का ही फायदा हो रहा है। अब 50,000 रुपए का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, अब इसको डिसाइड करते हैं। हमने जब माल बेचा था तो हमारा बिल बना था 23,50,000 का, तो हमको पैसा आना चाहिए था 23,50,000, जबकि पैसा आया कितना? 24 लैक्स। यानी 50,000 रुपया हमारे पास एक्स्ट्रा आया। और इस एक्स्ट्रा पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट FEF। क्या बोलते हैं हम इसको? FEF। और क्रेडिट है तो इसलिए क्या लिखना पड़ेगा? टू FEF। FEF का फुल फॉर्म आप लोग को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो भी मैं वापस से लिख देता हूँ। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, फ्लक्चुएशन अकाउंट। तो इसलिए FEF अकाउंट खोला जाता है। सो दिस इज योर FEF अकाउंट, isn't it? So this works out like that। तो ये हो गया। अब मार्च 31 मतलब साल खत्म हो गया, ये अकाउंट बंद करना पड़ेगा। तो FEF अकाउंट ही आपके पास है एक नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट बंद करके कहाँ भेज दिए जाते हैं? प्रॉफिट लॉस में। तो अभी FEF क्रेडिट है तो उसको ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा? FEF डेबिट हो जाए। तो FEF अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चा लोग? ये 50,000 ही है, तो ये 50,000 हम लोग ले लेते हैं, बराबर। जहां तक स्वप्निल लिमिटेड का सवाल था, ये वाला जर्नल हमने सॉल्व कर दिया, ठीक। अब इस क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट दिया हुआ है, उसको भी मैं टाइटल दे देता हूँ। ये आपका जर्नल बनेगा दूसरे वाले का, जहाँ पे सब चीजें इंपोर्ट हो रही हैं। अब इसके सेकंड वाले हिस्से पे आ जाओ। क्या नाम है? एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड एन इंडियन कंपनी, एडवांस्ड $16,000 for import of goods from USA, company of USA on 1st Feb 2006. The goods were received along with the purchase bill of 25,000 on 1st March 2006. The balance amount was paid on 15th March 2006. अब यहाँ पे देखो अगर ध्यान से, तो लगभग 3 ट्रांजेक्शन हो रहा है। एक्स लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, पहले तो उसने एडवांस दे दिया 16,000 रुपए
गुड्स इंपोर्ट करने के लिए 16,000 रुपये का एडवांस दिया है गुड्स इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है, मान लिया। तो आपने उसको एडवांस दिया यूएस कंपनी को, और एडवांस देने की तारीख मोस्ट प्रॉब्ली क्या दी हुई इन्होंने, 1 फेब। यूएस कंपनी ऑन 1 फेब 2006, यानी क्वेश्चन शुरू होगा 1 फेब 2006 से, राइट। तो ये जो क्वेश्चन आपका कहानी शुरू हो रहा है, ये कुछ यहाँ से शुरू होगा 1 फेब से। द गुड्स वर रिसीव्ड along with the purchase bill of 25,000 on 1 March, बराबर, 1 महीने पहले एडवांस दे दिया था आपने, पर गुड्स का सप्लाई मिला या गुड्स आपके पास आए कभी, $25,000 के 1 मार्च को। 15 मार्च को हमने बिल भी सेटल कर दिया। अब ये एडवांस वाला क्वेश्चन होने की वजह से थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। अब ऐसे एडवांस वाले क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, अभी आप देख लीजिए, जो जिसका जर्नल बनाना है वो एक्स लिमिटेड है, बराबर, और जो आपका सप्लायर है, अगर हम सप्लायर की बात करें तो सप्लायर कौन है यहाँ पर, यूएस कंपनी, यूएस कंपनी यूएस से, बराबर है ना, ये आपका सप्लायर हो गया। तो ये आपका क्रेडिटर समझ लो, सप्लायर समझ लो, जो समझना है, मतलब वो नाम से आप पहचान सकते हो। तो पहले तो ट्रांजैक्शन शुरू होगा 1 फेब 2006 से। तो लेट मी कंटिन्यू विद दिस। तो ये मान लेते हैं, ये जो आपका है ये जर्नल है, जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड। इसमें कोई शिकायत नहीं। अगर साल की बात की जाए तो साल आपका जो है 2006 ही है। पहला ट्रांजैक्शन हो रहा है फेब 1 को। फेब 1 को क्या किया आपने, एडवांस दे दिया, राइट। किसको एडवांस दिया, यूएस कंपनी को। तो हम लोग यहाँ पे उसको ऐसे ही लिखेंगे, एडवांस टू यूएसए कंपनी। नाम देख लें जरा एक बार, एडवांस टू यूएस कंपनी है, वो यूएसए नहीं है, तो मेरे को ए निकालना पड़ेगा। इसको निकाल देते हैं, विल राइट इट अगेन, यूएस कंपनी यूएसए अकाउंट डेबिट, बराबर है, टू बैंक, टू बैंक। कितने का एडवांस दे रहे हो आप, एडवांस दे रहे हो $16,000 का, बराबर। और जिस दिन एडवांस दे रहे हो 1 फेब को, उस दिन डॉलर का रेट है 47.5। मैं ये कैलकुलेशन यहाँ दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना पैसा एडवांस दे रहा हूँ, $16,000 दे रहा हूँ 47.5 से। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखते हैं क्या कैलकुलेशन आता है। $16,000 है आपके पास, वो भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 47.5 से, 47.5 से। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 7,60,000 हो जाता है। कितना हो जाता है, 7,60,000, 7,60,000। अगर इसका नरेशन लिखना होगा तो आप नरेशन लिख सकते हैं, ये नरेशन लिखते हैं यहाँ पर। क्या होगा नरेशन, being advance paid to supplier, being advance paid to supplier। अब ये एडवांस पे किया आपने सप्लायर को, सप्लायर ने आपको March 1 को गुड सप्लाई कर दिया, यानी आपका ये परचेस हो गया। तो इसको हम लिखेंगे इंपोर्ट परचेस, इंपोर्ट परचेस अकाउंट,
परचेस अकाउंट डेबिट, इंपोर्ट परचेस अकाउंट डेबिट। आपने ये एडवांस दे के रखा है यूएस को, तो यहाँ पे ये अकाउंट जो डेबिट है उसको आप क्रेडिट कर देते हैं टू एडवांस टू यूएस कंपनी यूएसए अकाउंट, इसको क्रेडिट कर दो क्योंकि अभी सप्लायर ने आपको माल सप्लाई कर दिया, और बाकी जो अमाउंट है वो टू यूएस कंपनी यूएसए, यानी इतना पैसा उसका बाकी रह जाएगा। अब इंपोर्ट परचेस हुआ कितने का, $25,000 का, बराबर। अब उस दिन क्या रेट होगा वो देखना पड़ेगा। उस दिन जो रेट था आपका 1 मार्च को रेट था 48 रुपीज का, इजंट इट? तो आप एक काम कीजिए, तो ध्यान से देखो, तो 25,000 इंटू 48 करोगे आप, बराबर। एडवांस कंपनी का पैसा कितना आपने पहले ही एडवांस दे के रखा था, 7,60,000, और आपने जिस दिन एडवांस दिया था उस दिन रेट था 47.5 का, और जिस दिन माल सप्लाई हुआ उस दिन रेट था 48 का। तो 50 पैसे का तो फायदा होता नजर आ रहा है। तो भी लेट्स सी, जरा कैलसी देखिए। तो 25,000 इंटू 48 अगर आप ये करते हैं तो आपका बिल का अमाउंट निकलता है 12 लाख रुपीस। कितना रुपीस? 12 लाख रुपीस। अब 25,000 में से 16,000 रुपये तो आप पहले दे चुके हो, तो आपकी लाइबिलिटी काफी कम हो जाती है। आपकी लाइबिलिटी अब सिर्फ बचती है 9,000 रुपए की, बराबर। तो अगर 9,000 की लाइबिलिटी बचती है तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लो 9,000 इंटू 48 रुपीस, ये भी देख लो क्या कैलकुलेशन आता है। 9,000 कैसे आया वो भी बता देता हूँ। टोटल डील आपका 25,000 का हुआ था, 16,000 रुपये आपने एडवांस दे दिया था, तो आपके $9,000 बचे। और जिस दिन ये ट्रांजेक्शन हुआ वो उस दिन डॉलर का रेट था 48 रुपीस। तो यानी देखा जाए तो हमको कितना देना पड़ रहा है उसको, उसका बैलेंस अमाउंट रह जाएगा 4,32,000। अगर सब कुछ सही होगा तो ये टैली होना चाहिए, मगर फिलहाल तो टैली होता नजर आता नहीं है। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, अगर टैली नहीं होगा तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। तो अभी देख लेते क्या डिफरेंस आता है। 432 है, बराबर। 432 प्लस 7,60,000, ये अमाउंट कर रहे हो तो 11,92,000 आ रहा है। यानी 8,000 रुपये अगर देखा जाए तो 12 लाख का बिल हो रहा है, तो 12 लाख में से इसको माइनस कर दो आप, तो 8,000 रुपये का फर्क आ रहा है। जानते हो ये 8,000 का फर्क क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हर डॉलर पे, यानी 16,000 जो डॉलर आपने पे किया था उस दिन रेट 47.50 पैसा था, तो 50 पैसा आपका फायदा हुआ ना। तो अगर 50 पैसा इंटू 16,000 आप करोगे, सॉरी आई रिपीट, 0.5 इंटू 16,000 करता हूँ, देखो आंसर 8,000 रुपये ही आता है। यानी अपने को ये ट्रांजेक्शन में 8,000 रुपये बच रहे हैं, तो ये 8,000 रुपये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट कहाँ जाएगा? एफ अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? एफ अकाउंट में 8,000 रुपीज। आई होप सो दिस इज क्लियर। अब मार्च 15 को उसका नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स इंपोर्टेड, being imported goods received, imported goods received, and advance payment adjusted, advance payment
एडजस्टेड। आई होप सो दिस इज क्लियर। ये आपका नरेशन हो गया। अब मार्च 15 को ही आप क्या कर रहे हो, पूरा पेमेंट कर दे रहे हो। कितना पेमेंट इसका बचा था? $9,000। $9,000 का बचा था। ये $9,000 का पेमेंट हम क्लियर कर देते हैं। 15 मार्च को ये पेमेंट कर रहे हो और उस दिन डॉलर का रेट बढ़ के हो गया 49 रुपीज। आपने लिया उधार 48 के हिसाब से, पेमेंट कर रहे हो 49 के हिसाब से, तो आपका कहीं ना कहीं ₹1 का नुकसान हो रहा है, बराबर। लॉस ऑफ ₹1। तो ये अमाउंट लेस एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जब आप पेमेंट करोगे तो किसको मिलेगा पेमेंट? यूएसएन कंपनी को। तो यूएस कंपनी अकाउंट डेबिट, बराबर है। आप बीच में एक लाइन छोड़ दो, टू बैंक। आप इनको पैसा दे रहे हो। इनकी उधारी बाकी क्या थी, कितनी थी? 9,000 बाकी थी 48 के हिसाब से। आपने पैसा दिया 9,000 इंटू 49 के हिसाब से। चलिए कैलसी देखते हैं क्या बताता है कैलसी। 9,000 देने हैं इसके हिसाब से 48 के हिसाब से। तो अगर मैं इसको 48 के हिसाब से करता हूं तो मुझे देना है 9,000 इंटू 48 करता हूं तो मुझे देना है 4,32,000। जो ये देखो अमाउंट मैच हो रहा है, बराबर। और मैं दे रहा हूं उसको कितना? 9,000 इंटू 49 के हिसाब से दे रहा हूं। तो ये वर्कआउट कितना हो रहा है? 4,41,000। तो अभी आप देखो यहां पर 9,000 इंटू 48 किया तो हमारा अमाउंट आ रहा था 4,32,000, बराबर। और जब पैसा दे रहे हैं तो वो दे रहे हैं हम लोग 4,41,000। 9,000 रुपया का फर्क आ रहा है। यानी 9,000 हमने को देना था 432, मगर हमने पेमेंट किया 441। यानी 9,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया हमने। 9,000 एक्स्ट्रा दिया मतलब आपको लॉस हो गया। तो आपकी एंट्री होगी एफ अकाउंट डेबिट। एफ अकाउंट, लेट मी टेक दिस, एफ अकाउंट डेबिट। और अब ध्यान से देखो तो $9,000 ही था। हर डॉलर पे अपने को ₹1 का नुकसान हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली अमाउंट कितना हो गया? ₹9,000 हो गया। अब सवाल उठता है, मार्च 31 आ जाएगा। मार्च 31 आ जाएगा तो नॉमिनल अकाउंट बंद करना पड़ेगा। तो आपके पास एफ अकाउंट है कितने? तो देखो ऊपर वाले में तो कोई एफ नहीं है। सेकेंड एंट्री में एफ है जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट है। मतलब ये क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, या अपनी कैलसी के लैंग्वेज में बात करें तो एम प्लस होना चाहिए। और ये अमाउंट डेबिट है तो ये क्या होना चाहिए? एम माइनस होना चाहिए। अगर आप एम प्लस एम माइनस करेंगे तो एम माइनस ज्यादा ₹1,000 का, मतलब अपने को ₹1,000 का लॉस हो रहा है, या एफ अकाउंट ₹1,000 से ज्यादा डेबिट है। तो डेबिट है तो उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आपकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एफ अकाउंट, एफ अकाउंट। तो ये अमाउंट हो जाएगा आपका 9,000 रुपीज। इज इट फाइन? 9,000 नहीं होगा बच्चा लोग, 1,000 होगा। कितना होगा ये? दिस शैल बी 1,000। So let me sort it out. So this amount is 1,000, is it? So ये सम यहाँ पे पूरा हो जाता है, जहाँ पे आपको एक साइड परचेज सीखने को मिला, मतलब सेल्स सीखा आपने, और दूसरे साइड आपने परचेज किया, और दोनों की एंट्रीज कैसे की जाती है वो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई। I assume and presume that you have understood it and you will try this. मैं चाहता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसे सॉल्व करें। आप कोई डिफिकल्टी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो you can get connected with me. I'll definitely explain the thing once again. I hope so you like it. Please go through it. Thank you very much.